are going to start chapter number 5, that is complex number and quadratic equation. So complex number and quadratic equation is there. So let's start with the word quadratic equation. ये आपने कहीं सुना होगा word quadratic equation. Quadratic equation. So that quadratic equation is chapter number 4 of our 10th standard, है ना? So standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0 is the standard form of quadratic equation, and we have discussed nature of roots of this quadratic equation, है ना? Quadratic equation means an equation with degree 2. Equation with degree 2. So any quadratic equation with degree 2 has maximum 2 solutions, and 2 solutions, or we can say 2 roots of quadratic equations are there. So roots of quadratic equations, and we are saying that alpha and beta. 2 roots of quadratic equations are there, alpha and beta, and that is given by minus b plus or minus square root of delta upon 2a. Now that is the roots of quadratic equation. So here delta, sometimes it may be represented by delta d, and that is nothing but the discriminant of this equation, and that is represented by equation b square minus 4ac. b square minus 4ac discriminant. डन? ये सब हमने स्टडी किया था. नेचर ऑफ रूट्स. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स? सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, nature of roots of this quadratic equation is based on the value of this discriminant d. ये भी हमने स्टडी किया था. So what is the nature of roots of quadratic equation? That is obtained by the value of this discriminant for this quadratic equation. For example, if value of d, ना ये स्टडी किया था, if value of discriminant is greater than 0, then our roots of this quadratic equation are real roots and distinct rule, or we can say unequal. Real and distinct roots are there. Distinct means unequal. Different roots are there. Two real and different roots are there if delta is greater than 0. Then if d is equal to 0, then we can say that roots are real and equal. Equal and real roots are there. And third case, that is the important case for this our 11th standard. ना 10th स्टैंडर्ड में हम ऐसा बोले थे, इफ डी इज लेस देन 0, तो हम क्या लिखते थे? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. हम ना यहाँ पर हम खत्म कर देते थे, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिखते थे हम स्टैंडर्ड 10 में. तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं है, मतलब फॉर दिस केस इमेजिनरी रूट्स आर देयर. कौन से रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स विल बी एग्जिस्ट. So that is the case of our 11th standard when d is less than 0, है ना? ये दोनों हमने स्टैंडर्ड 10 में स्टडी किया था, यहाँ पर स्टडी करना ये है d less than 0. So roots of the quadratic equations are imaginary roots. Real roots does not exist. Real roots कैसे निकालना है वो हमने स्टैंडर्ड 10 में स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, चैप्टर नंबर 4. So now discriminant d is less than 0. So here imaginary roots are there. For example, one quadratic equation is there. Quadratic equation means degree is 2. So x square plus 9 equal to 0. This is one quadratic equation. So if you want to find the solution of this quadratic equation, what we will do? We are taking this x square equal to 9 on the right hand side, so it will become minus 9. So x square is equal to minus 9. So what is the value of x? Value of x is nothing but the प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस 9. और ये माइनस 9 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं था, है ना, नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर सिस्टम में अभी तक हम रियल नंबर स्टडी कर रहे थे. सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अलका मैम वो क्लास में बोलो ना, ये यहाँ पर बहुत आवाज आ रही है. अलका मैम, x इक्वल टू
square root of minus 9. So here square root of this minus 9 cannot be found. Done. So here we are introduce new concept, that is our complex number, है ना. अभी तक हमें पता है, ऐसा है, हमें ऐसा सिखाया गया है कि ऐसे कोई भी नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट वो एग्जिस्ट नहीं होता है, रियल नंबर इसका नहीं आंसर आता है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन अवर नंबर सिस्टम, है ना. दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज आयोटा. आयोटा, है ना, आयोटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आयोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. तो ये आई क्या होता है, और आई इज नथिंग बट दी square root of minus 1, that is iota. Done. So this is the new introduction in our number system, iota, it is equal to square root of minus 1. So if we use this iota, this is one imaginary number, है ना, iota is one imaginary number. So we are introducing one imaginary parts in our number system, iota I. So now we are making the use of this minus I to solve this equation x equal to plus or minus minus root 9. तो इसको I का यूज करेंगे ना तो हमें आंसर मिलेगा. देखो कैसे मिलेगा. So now continue with this equation to find the solution. हमारा लास्ट स्टेप ये था कि x इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9. अभी माइनस 9 को हम क्या करेंगे, आयोटा से रिप्लेस करेंगे, है ना. सपोज i इक्वल टू माइनस रूट आई, तो इसका हम आई स्क्वायर कर दे, आई स्क्वायर, तो क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, है ना. इफ वैल्यू ऑफ आयोटा इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, so what is I square? I square is minus 1. Done. So now we replace this minus 1 with I square. कैसे, देखो x equal to plus or minus square root of minus 1 into 9. Minus 1 into 9, and replacing this minus 1 with I square. So it's x equal to plus or minus square root of minus I is I square, and 9 is 3 square. So now its square root is 3i. So our solution is x equal to plus or minus 3i. I represent iota, which is imaginary part. So here solution of this equation, x square plus 9 equal to plus or minus 3i. So here this solution is imaginary solution, है ना. यहाँ पर जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, इमेजिनरी सॉल्यूशन. व्हाई इमेजिनरी? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ iota I. Iota I is one imaginary number in our number system. Clear? So this is known as imaginary numbers, real and imaginary numbers. So the number which consists of imaginary parts as well as real parts, that is our complex number. And our chapter is complex number and quadratic equation. So now we are defining our complex number. So what is complex number? Generally complex number are represented by Z. और हमारे नंबर में नंबर सिस्टम में z को हम रिप्रेजेंट करते हो इंटीजर. तो ये इंटीजर वाला z नहीं है ना, ये भी आप कंफ्यूजन में नहीं रहना है. z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंटीजर नहीं है. डन. सो सेम नोटेशन इज यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z which is always in the form of a plus ib. The number which is in the form of a plus ib is known as complex number. So here what is a and what is b? So here a is nothing but the real part, है ना. a is nothing but the real part of this complex number. Real part. Complex number consists of two parts, real parts and imaginary part. So a is our real part and b is our imaginary part. Is our imaginary part. So real part of z is represented by real z, है ना. real z means real parts of this complex number. So real part of this complex number, real z, is nothing but the a, and imaginary part is represented by imaginary z. Imaginary z is nothing but the b, है ना. ये नोटेशन आपको याद रखना है. real z means a, and imaginary z means b. What is a and b? A is real part of complex number, b is imaginary part of complex number. Done. Any complex number, the number which is in the form of a plus ib is known as complex number. Done. For example, if we are having one number z is one complex number which is 3 plus 4i, है ना. यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं है कि i आगे लिखना है कि पीछे लिखना है.
आपको जहाँ पर इच्छा हो, मन हो, वहां पर आप आई लिख सकते हो, है ना। तो इट्स 3 + 4i। ऐसे कोई नंबर आएगा तो आई पीछे लिखेंगे, ऐसे कोई, है ना, अल्फाबेट से कोई वेरिएबल आएगा तो आई आगे लिखेंगे, लेकिन आई को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, आगे या पीछे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग वन complex number z equal to 3 plus 4i, so for this complex number, the real z is 3 and imaginary z is 4. Done. So this is real part, this is imaginary part. Done. उसके बाद दो डेफिनेशन है, प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज प्योरली रियल नंबर? Purely real number means complex number consists of two parts. And if the complex number is purely real number, that means its imaginary part is 0. So if b equal to 0, then we can say that given complex number is purely real number. क्योंकि b equal to 0 पुट करेंगे तो हमारा complex number क्या होगा? z is equal to a, और a क्या है? a is our real number, only real part is there. So the complex number which consists of only real part, है ना, the complex number which consists of only real part is known as purely real number. Only real part is there. Imaginary part b, है ना, imaginary part, है ना, imaginary part of z is 0. So we are getting purely real number. Similarly purely imaginary number होगा purely imaginary number. So purely imaginary number में क्या होगा? रियल पार्ट है वो 0 होगा. So if a equal to 0, that means if real part is 0 and complex number consists of only imaginary part, that means z is equal to ib. Z is equal to ib. So here our complex number consists of only imaginary part. So this is known as purely imaginary number. Clear? So this is the short introduction of complex number. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Iota, complex number, real part and imaginary part. Iota is one our introduction. We are taking iota I as a square root of -1, है ना, ये याद रखना है कि I क्या होता है? It's a square root of minus I. I square करेंगे तो क्या होगा? I square is equal to minus I. Done? Then we consider power of I, वो हम आगे स्टडी करेंगे. तो I मतलब इमेजनरी पार्ट होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स. इमेजनरी पार्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय I, है ना, I के साथ जो पार्ट होता है उसका इमेजनरी पार्ट होता है, और जो इमेजनरी पार्ट 0 है तो इसको हम प्योरली रियल नंबर बोलेंगे. अगर रियल नंबर 0 है तो इसको हम प्योरली इमेजनरी नंबर बोलेंगे. होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसको आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को फाइंड करना है, तो नोटेशन यूज करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 3, तो रियल पार्ट आ गया. इमेजनरी ऑफ जी, है ना, इमेजनरी आई एम, इमेजनरी ऑफ जेड, और ये जेड इंटीजर का जेड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड है. सो इमेजनरी ऑफ जेड इज, वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ आई, है ना, तो 4. डन. चलो next we have to study equality of complex number. If two complex numbers are equal, then, so next topic is equality of complex number. Equality of complex number. Equality of complex number. So two complex numbers are equal. For example, if z1 equal to a plus ib, this is first complex number, na, z1, we have to consider two complex numbers. So first complex number is a plus ib, and the second complex number is z2, which is a2 plus, नहीं इसको हम a2 नहीं लेंगे, c लेगा, c and d, c plus id. Done. C plus id. Here a is the real part, b is imaginary part. Here c is real part and d is imaginary part. Now equality of two complex number. That means if two complex numbers are equal, z1 equal to z2,
If two complex numbers are equal, then we can compare this both the parts. A plus IB equal to C plus ID. Done. So if two complex numbers are equal, we can say that their imaginary parts and their real parts are equal. So real parts are A and C, and then, or we can say therefore, we can say that A equal to C. So imaginary parts as well as real parts are equal, and B equal to D, imaginary parts are equal. So if two complex numbers are equal, we can write their imaginary parts are equal as well as their real parts are equal. Done. शॉर्ट कॉन्सेप्ट वॉज देयर. ये छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसका यूज करके हम सम्स करेंगे, है ना. सम्स पे इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वही. तो दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा वो स्टडी करना है. दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So first we'll consider first basic operation, that is addition. Addition of complex number. So first algebra is addition. Addition of complex number. Addition of complex numbers. है ना. तो एडिशन क्या होता है, सपोज Z1 एंड Z2 है, दोनों का एडिशन करना है ना. सो Z1 प्लस Z2, तो एडिशन क्या होगा, तो उसका जो रियल पार्ट है उसका एडिशन, A प्लस C प्लस उसका जो इमेजनरी पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट, उसका एडिशन B प्लस D. So that is the addition of two complex number. Simple. Then we have to consider the properties of this addition of complex number. So let's discuss all properties one by one. Properties of addition of complex number. So first property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. ये सब प्रॉपर्टी के नाम आपने सुने हुए. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीजर फ्रैक्शन वो सब में हम स्टैंडर्ड 8 में से सब स्टडी करते थे. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ यू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करे Z1 प्लस Z2, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, A प्लस IB के फॉर्म में ही है. सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दैट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, दो नेचुरल नंबर का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा. सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. दैट इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी. उसके बाद प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें इंपॉर्टेंस था सीक्वेंस का, है ना. नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज हमें 3 और 5 का एडिशन करना है तो 3 पहले 3 ले उसके बाद 5 ले, 3 प्लस 5 करे तो आंसर 8 आएगा. या फिर हम पहले 5 ले और उसके बाद 3 ले, 5 प्लस 3 करे तो आंसर सेम ही आएगा. तो सेम प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ यू परफॉर्म एडिशन ऑफ Z1 प्लस Z2, पहले Z1 ले उसके बाद उसमें Z2 ऐड करें, या फिर पहले Z2 ले और उसमें हम Z1 ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा. दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. डन. ये सब प्रॉपर्टी पता है आपको. उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुपिंग के लिए यूज होती है ना. 3 नंबर का एडिशन करना है 2, 3 और 5, तो आप जो चाहे वो पहले ग्रुप ले लो, एडिशन करो तो आंसर सेम आएगा. तो यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर लेने हैं. सो इफ यू आर टेकिंग Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना, ये आपको एडिशन करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीनों का एडिशन करना है. तो आप पहले Z1 प्लस Z2 ले लो उसके बाद Z3 ऐड करो, या फिर पहले आप Z2 प्लस Z3 ले लो उसमें आप Z1 ऐड करो, it will give the same result. So this is known as associative property.
After associative property, next property is existence of additive identity. Existence of additive identity. So what is additive identity? नेचुरल नंबर के बारे में सोचो, नेचुरल नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें हमें कुछ ऐड करना है तो हमें z ही मिलना चाहिए, तो क्या ऐड करना है? जीरो। आप बोलोगे सर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हुआ? तो जीरो इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे? जीरो प्लस आई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। सो दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट वन, existence of additive inverse. Existence of additive inverse. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, z के अंदर हमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारा आंसर जीरो हो जाए। क्या ऐड करेंगे? माइनस जेड। सो दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। डन। सो these आर दी properties of addition of complex number. We have to discuss the algebra of complex number. So second one is subtraction. Additive inverse. Additive inverse. Wait. Subtraction of complex number. माइनस जेड मतलब क्या होता है? ये माइनस ए माइनस आई बी एड कर दो, तो जेड हमारा क्या था? जेड हमारा था ए प्लस आई बी। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर, सपोज नेचुरल नंबर ले ले हम, तो फोर के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारा आंसर जीरो आएगा, तो क्या? माइनस फोर। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो कि ऐसा ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो जाए, तो z के लिए उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस जेड। जेड हमारा क्या है? a प्लस आई बी, तो माइनस जेड क्या होगा? माइनस ए माइनस आई बी। ऐड करो तो हमारा नंबर जीरो आ जाएगा। जीरो क्या होता है? जीरो प्लस आई जीरो। क्लियर? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर जीरो इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जीरो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। जेड के अंदर माइनस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। क्लियर नाउ? तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी कैसे करना है? सिंपल, z1 माइनस z2 करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम जो हमारे रियल पार्ट है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, a माइनस बी होगा, प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, और जो b है उसका, है ना, ये कंसिडर करते हैं, a माइनस सी है। वेरी गुड, a माइनस सी, और यहाँ पर b माइनस डी होगा, b माइनस डी, है ना। जैसे एडिशन में किया था, रियल नंबर जो रियल पार्ट है उसका एडिशन, और जो इमेजनरी पार्ट है उसका एडिशन। So for subtraction, you have to consider the subtraction of real part and subtraction of imaginary part. तो ये आपका subtraction हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रॉपर्टीज, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो सब सेम ही आएगा। उसमें ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सीक्वेंस चेंज कर देंगे ना तो सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। वो सब आपको पता है, तो आप देख लेना वो। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, नेचुरल नंबर से कंपेयर करो तो समझ में आ जाएगा। z1 माइनस z2 क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेंगे वहां पर। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड अलजेब्रा इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। सो फॉर मल्टीप्लीकेशन वी आर हैविंग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, and the second complex number z2 is c plus id. Now multiplication means z1 multiplied by z2, it's a z1 z2, मल्टीप्लीकेशन करो, it's a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। नाउ जैसे एक्सपांसन करते थे मल्टीप्लीकेशन में,
ए को मल्टीप्लाई करो सी प्लस आई डी के साथ, तो क्या होगा ए सी प्लस आई ई डी प्लस बी, आई बी को मल्टीप्लाई करो सी के साथ तो होगा आई बी सी प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करो आई डी के साथ तो होगा आई स्क्वेयर बी डी। और हमने स्टडी किया है आई स्क्वेयर, है ना, आयोटा आई क्या होता है, आई इज स्क्वेयर रूट ऑफ -1। सो व्हाट इज अवर आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर इज -1, है ना। सो रिप्लेसिंग दिस आई स्क्वेयर विथ -1, तो ये जो साइन है ना वो माइनस हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये दोनों पार्ट है ना, देखो इसमें कुछ आई नहीं है, इसको और ये आई स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो ये दोनों को साथ में लिखेंगे और यहाँ से हम आई कॉमन लेके इमेजनरी पार्ट है उसको साथ में लिखेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो दिस वन इज ए सी प्लस आई स्क्वेयर बी डी, आई स्क्वेयर इज -1, सो माइनस बी डी, सो माइनस बी डी, दिस इज अवर रियल पार्ट, प्लस यहाँ से दोनों टर्म में से आई कॉमन लेंगे, सो आई कॉमन, remaining parts are AD plus BC, AD plus BC। So this is one complex number है ना, which is in the form of A plus IB। ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट प्लस I into our imaginary part। So multiplication of two complex number is also complex number। और multiplication कैसे होगा, AC minus BD plus I AD plus BC। Done, simple। This is multiplication of two complex number। Now you have to discuss properties of this multiplication and one of the most important property of the multiplication जो हम sums में यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम इसीलिए स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ these are the important properties of multiplication। so let's start with the properties of multiplication। properties of multiplication, first property, closure property। है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, z और z2 करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना, लास्ट में हमने देख लिया। तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करो z1 z2 के साथ या फिर z2 z1 करो, आंसर सेम आएगा, कोई भी सीक्वेंस में करो। थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी हमें पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। मल्टीप्लिकेशन करना है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का, z1 z2 z3, तो आप कोई भी ग्रुप लेके करो, पहले z1 z2 कर दो, उसके बाद z3 मल्टीप्लाई करो, या फिर z2 z3 करो, z1 मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। डन, ये तीनों थी। उसके बाद फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, z1 के साथ हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर है क्या आएगा, z1 ही आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1। डन। और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है ना, फिफ्थ, इसको अच्छी तरह से देख लो, ये हमें सम में यूज करना है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करती रहेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, z को कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। कौन सा नंबर होगा, 1/z, है ना, 1/z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना। क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम बोलेंगे MI, है ना, मुंबई इंडियंस। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब समझ में आने वाला है। तो जेड इंटू वन बाई जेड इक्वल टू वन, तो ये वन बाई जेड कहाँ से फाइंड करना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। ये वन बाई जेड रेसिप्रोकल हो गया, तो ये रेसिप्रोकल को हम कैसे लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई जेड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जेड इनवर्स, यस और नो, जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड, और जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी। इसमें किसी को कोई डाउट। और यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम जो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं वन अपॉन ए प्लस आई बी, तो अभी ये जो ए प्लस आई बी है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, है ना, नया वर्ड है कॉन्जुगेट। देखो क्या होता है कॉन्जुगेट, ए प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब ये जो इमेजनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज करना है। इट्स ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा जेड का, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और विच इज नथिंग बट दी जेड इनवर्स। ऊपर मल्टीप्लाई करो तो होगा ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, डन। और नीचे मल्टीप्लाई करो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी ए है और सेकेंड टर्म हमारी आई बी है, तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर, और ए माइनस आई स्क्वायर तो होगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगेन आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, और माइनस वन को यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज नथिंग बट दी ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। और ये कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेट, तो वो देख लेते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। सो लेट और कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, हमने कॉन्जुगेट किसका निकाला, ए प्लस आई बी का ही निकाला ना। तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से, है ना। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से, और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जेड इनवर्स से। जेड इनवर्स कैसे मिलेगा, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपका जो उसका इमेजनरी पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट, उसकी साइन चेंज करनी है। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट की साइन कौन सी है, प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्या होगा ए माइनस आई बी। So if z is equal to 3 plus ib, so conjugate of z which is z bar which is equal to a minus ib. क्लियर। एग्जांपल ले ले, सपोज, है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजनरी पार्ट उसकी जो साइन होती है ना वो चेंज करनी है, साइन चेंज, है ना। कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग z इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर आई, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से। बोलो क्या होगा, क्या होगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। यस वेरी गुड, माइनस फाइव प्लस फोर आई, ये जो साइन है ना, ये साइन माइनस उसको प्लस कर देना है, तो आपका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हो, और ये मेथड से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको वो नंबर का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, और वो कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करना है, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर मिलेगा। क्लियर। उसके बाद कितना टाइम बचा है, 10 मिनट्स।
Huh? 1